India. We shift our focus in the meanwhile to the bordering regions of Karnataka and Maharashtra. The situation over the border issue between the two states continues to remain tense. Protests broke out in parts of Karnataka and Maharashtra over the border dispute, even as the matter, remember, is being heard in the top court. In Belgavi, for example, buses from Maharashtra were targeted, vandalized by pro-Kannada groups, while in the state of Maharashtra, multiple buses bearing number plates from Karnataka were either blocked or defaced. Some protesters also sprayed Jai Maharashtra slogans on buses coming from Karnataka. As tensions continue to simmer between the two states, public faces the brunt of the tussle. Several people have in fact been stranded amid the interstate bus services being stalled. Hear it from them first up. सुबह 2 घंटे से बैठा हूँ, बस का वेट कर रहा हूँ। सुबह से कोई बस नहीं चल रही है, हमें बहुत परेशानी हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हैं बेलगाम जाने के लिए, कर्नाटक में जाने के लिए। कोई बस अभी तक आई नहीं है, सब लोग परेशान हैं यहाँ पे। Well, the situation has remained tense for the last couple of days. Times Now has been getting you non-stop ground reports on the latest situation. This one coming in from Maharashtra. Listen in. The border row between Maharashtra and Karnataka has only intensified. Several of Maharashtra vehicles were stopped and vandalized at the border by pro-Kannada groups. In fact, we have with us several of youth NCP leaders who are protesting outside Karnataka Bank. आपको क्या कहना है शिंदे फडणवीस सरकार को? See, my simple question to Honorable Deputy Chief Minister and Honorable Home Minister Fadnavis ji, that till today, I mean, why there is a tense on border? Why there is a question of law and order have been raised at the border? Why did you quit till today? Till today, when the 7th of this December, you have not been able to enter in state of Karnataka. You couldn't steal the dialogue to the Chief Minister of Karnataka. My question to Honorable Devendra Fadnavis ji, who is responsible for this law and order? But the way it has been treated to Maharashtra people, I think it is a completely political agenda. And that's the reason I feel that this is a complete failure of Honorable Shinde Sarkar and Fadnavis Sarkar government in Maharashtra. हमारे महाराष्ट्र के मराठी लोगों के ऊपर जो हल्ला हुआ है, जो उनकी मारहाण हुई है, जो उनको पीटा गया है, वो सब एक निंदनीय है। यहाँ पे हम लोग ने देखा, हम लोग मराठी लोग हैं, हमारे अस्मिता के, हमारे संरक्षण के लिए हम लोग यहाँ पे आए, रास्ते पे खड़े रहे और हमारी इस गवर्नमेंट से पूरी गवर्नमेंट हमारी हमको ये लगता है कर्नाटक सरकार का जो आने वाला चुनाव है उसमें उनको फायदा उठाने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट चुप्पी मौन साधे हुई बैठी है और इसके खिलाफ शरद पवार साहब 82 साल की उम्र में रोड पे खड़े रह के बोल रहे कि मैं बेलगाम आऊंगा, तो हमें उनके नाज है उनके ऊपर, तो हम भी उनके साथ है। यही बताने के लिए हम लोग रोड पे खड़े और आज कर्नाटक बैंक को बंद कराने के लिए हम लोग आए। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल ने कल कर्नाटक में जाने वाले बस सेवा बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन उसका कोई भी असर सोलापुर विभाग में देखने को नहीं मिल रहा है। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटक के बॉर्डर पे है, यहाँ पे लगभग 100 से भी ज़्यादा बसेस की यातायात कर्नाटक में रहती है। कर्नाटक के बसेस यहाँ पे आते हैं, लेकिन इसका कोई भी असर जो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। कर्नाटक गवर्नमेंट की जो बसेस यहाँ पे आती है वो ठीक तरह से उनकी भी सेवा यहाँ पे शुरू है और महाराष्ट्र से भी सोलापुर विभाग से भी यहाँ लगभग 100 से भी ज़्यादा बसेस की यातायात कर्नाटक में रहती है। यहाँ से कर्नाटक के विजयपुर हो, गुलबर्गा हो या बीदर हो, यहाँ की बस सेवा जिस तरह से डेली शुरू रहती है, हर दिन शुरू रहती है, ठीक उसी तरह की बस सेवा आज भी यहाँ पर जारी है। कल कर्नाटक के बॉर्डर पर कर्नाटक रक्षण वेदिका के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र की गाड़ियों पर पथराव किया। उसके बाद तनावपूर्ण स्थिति निर्माण हुई है। महाराष्ट्र से कर्नाटक में जाने वाले और कर्नाटक से महाराष्ट्र में आने वाले सभी गाड़ियां जो है वो बंद कर दी है। महाराष्ट्र पुलिस ने एसटी निगम को कर्नाटक को जाने वाली एसटी बसों को रोकने का निर्देश दिया। इसके मुताबिक एसटी निगम ने सांगली से कर्नाटक में गुजरने वाली करीब 80 एसटी बस रूटों को बंद कर दिया है। कर्नाटक से महाराष्ट्र में आने वाली KSRTC की गाड़ियां भी बंद कर दी है। हर दिन औसतन 2.5 लाख रुपयों का जो नुकसान है वो यहाँ पर एसटी को हो रहा है। आप देख सकते हैं इस समय मैं सांगली के बस स्टैंड पे खड़ा हूँ और यहाँ से कर्नाटक के लिए जाने वाली जो प्रवासी है वो खड़े हुए हैं। कर्नाटक में जाने के लिए कोई भी बस नहीं उपलब्ध। हम खड़े हैं कोल्हापुर के एसटी स्टैंड के सामने, जहाँ से
बेलगाम और निप्पानी और कर्नाटका के लिए गाड़ियां जाती है। हम देख सकते हैं कि सुबह से महाराष्ट्र के तरफ से गाड़ियां जा रही है, लेकिन कर्नाटक के तरफ से एक भी गाड़ी नहीं आई है। हम आपको बता दें कि कर्नाटक से दिन में कम से कम 240 बसेस आती है, उसमें से एक भी बस नहीं आई है, जबकि महाराष्ट्र के 140 बसों में से सिर्फ 40 बस सुबह निकल गई है और प्रवासियों की बहुत बड़ी भीड़ और यातायात यहाँ पे खड़ी है। आपको बता दें कि कोल्हापुर, बेलगाम और महाराष्ट्र के बीच का बहुत बड़ा एक जंक्शन है और कोल्हापुर एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने की वजह से कोल्हापुर और बेलगाम के बीच में बहुत डे टू डे ट्रांसपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं, उनको बहुत बड़ी परेशानियां दिख रही है। कोई भी बस यहाँ पे अभी जो कुछ भी सुबह से बस निकली है कर्नाटक के लिए, वो भी कर्नाटक पुलिस ने बंद करने को बोली थी।